खल्क अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मलीहा की घर रात रही थी। जैसे कि आपको पता है आजकल मेरा घर में दिल नहीं चाह रहा। ये मलीहा का बेडरूम है, ये उसके बेड टीवी है, ये मलीहा है। हेलो। ये मलीहा मेरे लिए बड़ा हेल्थी ब्रेकफास्ट लेके आई थी और अब मैंने मलीहा को कहा तेरी माँ गश्ती हो गई है। आई डोंट नो क्या कर दिया कोविड भाई ने मेरे बदन में, क्या कर दिया, मेरा घर में दिल नहीं लगता। तो कल आई थी कार्डिफ, व्लॉग आप लोगों ने देख लिया, मलिया के साथ पोस्ट किया था। और मलिया के घर रह गई, कोई कपड़े कुछ नहीं लेके आई थी। मलिया का नाइट ड्रेस पहना और वही कपड़ों में मैं हूँ। और अब फिर मलिया को कहती हूँ चलो बाहर चलते हैं। सुमैया का फ़ोन है, मैं सुमैया का फ़ोन सुनती हूँ। Please subscribe and click the bell to get notification. Hi everyone, I've kind of brushed up. Oh, there's my face getting a bit red though. I brushed up quite after a very long time. I did my hair as well and everything. I don't know, this isn't even my vlog. I should be speaking about you. Yeah, but my vlog is like for me and my children, innit? Yeah. Basically. Yeah, so right now we're basically going to where are we going? We're going to Canton. They would know. We're going somewhere to find some food. Yeah, Canton, and there's like you know, our Cardiff YouTube family know where Canton is. We like as I told you, I can't just sit home. I don't know. I was like a very home. Yeah, well, basically, I had a ton of things to do, but with Mama's like, I want to go out somewhere. I'm so naughty. I said the COVID bhai just मेरे अंदर कुछ रख दिया उसने, मुझे गश्ती बना दिया, मैं बस गिरती रहती हूँ। Yeah, the thing is, I just don't. Do you know, because of COVID and everything else, I've forgotten what places there are to eat. मलिया हर वक्त फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती है। मुझे अपना टेस्ट और अपना स्मेल वापस लेके आना है। But do you feel like it's a little bit better taking the zinc? Just I feel last night a little bit. See? Yeah. See? फिर आज स्मेल नहीं आ रहा। Anyway, बार-बार क्या फरियाद करूंगी, आप लोग भी तंग आ जाएंगे। So we're trying to find somewhere to eat right now. मैं और मलिया कुछ खाएंगे और फिर अभी उठे थे, बाहर जा रहे हैं और अब जोहर का टाइम हो गया, तो अब फिर केलब को उठाना होगा। फिर मलिया ने ढेर सारे काम करने हैं, मैं घर चली जाऊंगी और इंशाल्लाह घर में जाके फिर कुछ करूंगी, कुछ वीडियो या कुछ बनाऊंगी। बट फिर you know everyone complained that it's not in English and that really affect me when a few of you complain that why mama you don't speak English. And you know I can only speak English when my children are around me. When I'm alone I'm much comfortable in Urdu, so that's one thing. Anyway, so आजकल मेरी और मलिहा के व्लॉग आ रहे हैं। अभी मेरा पार्टनर नाफिया थोड़ा सा बिजी है, so inshallah soon I think on weekend I'm gonna post me and my daughter-in-law relationship. So back to food as well. I just don't know which places to eat. Yeah, and Mama, let me tell you something. Mama is so fussy. Actually, I just love my own food. You say you love your own food, but guess what? Mama doesn't even eat her own food. She just doesn't eat. I don't even know why you. I eat my own food. You eat it, but you don't like. Mama does this. She'll cook, and then she when won't I cook eat. like 10 dishes, then I get tired. Like yesterday, I was in Nafia house. Me and Maliha. Mama, did you see? Look in your mirror. There's a guy on the motorcycle, right? Yeah. GETI, the purple and yellow. Yeah. Okay, so let me tell you, for those who didn't know, when I had COVID, everybody was still in my house, and I needed to get like groceries. At the beginning, I was thinking, how am I gonna go? Blah blah blah, because everybody lives ages away. So Sami said to me, he was just like, there's an app, Getter. Oh. And you just put it, I think it's free delivery or £15 off on if you spend whatever. Anyway, and they get you groceries, whatever it is. If you want Coke in the middle of the night, just put it in. They deliver the Coke on a motorbike. Wow. Yeah. I saw a couple on a bicycle. They're on a motorbike. Okay. And they deliver it within 11 minutes. Allahu Anything Akbar. you want.
Anything, even if you need a pregnancy test in the middle of the night, they'll deliver it to you. Wait, Yeah. and who need a pregnancy test in middle No, of the I'm night? just saying, like, if you're really, you know what I mean. Like anything. Okay, anyway, so हम देखते हैं कि कोई मलिया कहती है कोई फ्राइड चिकन प्लेस है. But Mama doesn't like fried chicken, so I'm really taking the... नहीं, Oh, we might go आजकल तो मैं- मुझे कोई भी चीज़ Calabresella, अच्छी नहीं which is लगती. Italian food. Yeah, let's see. Well, you had pizza at well, night last keep night. in your mind we only go 1 hour and 15 minutes, so Okay. you Not better even hurry up. 15 minutes. फिर मैं अपने Yeah, घर 15 जाऊंगी और कोशिश करूंगी कोई रेसिपी बना के पोस्ट कर दूं इस व्लॉग के बाद इंशाल्लाह. आज का तो बस ऐसे ही मेरे ख्याल में छोटा सा व्लॉग होगा क्योंकि बस ये मलिया के साथ है. आप लोग हमेशा कहते हो आपको मलिहा, नाफिया, सुमैया अच्छी लगती हैं. चले ये 1-2 व्लॉग मलिहा के साथ हो गए हैं. असल में मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैं हर रोज व्लॉग पोस्ट करूं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. मैं सुबह सोच रही थी, एकदम से मेरे दिमाग में आया कि इस टॉपिक पे व्लॉग होना चाहिए. So I was about, What topic? you know, totally forget now. Yeah. You सोचने वाली थी. मैं बस उठने वाली थी तो मलिहा बस मैं व्लॉग के बारे में सोच रही थी कि मलिया को कहती हूँ कि ये वाला व्लॉग Why is it so... I don't know. The color is a bit... Yeah, it's okay now. It's okay. Yeah. लेकिन फिर मलिया ट्रे में हेल्थी ब्रेकफास्ट ले आई और मैं सारा कुछ भूल गई. The thing is, I wanted to take Mama to this Turkish cafe, but the thing is, they were closed, which is why I was like, let me rustle up something. Yeah, we breakfast. always want to go. It's called Longa. No, Ladana. Yeah. Ladana to Birmingham में मेरा favorite है. Which is it's really nice. Yeah, but, it's very nice cafe. मुझे सिद्दीक लेके गया था और एक दफा मैं नाफिया remember लेके there was गई. this place I was telling you in City Road, there was Hannah, there was open all Yeah, day you told me, Turkish yeah. breakfast. Yeah. Can you? Oh no, but it's far away. By the time we come back, we're not gonna make it for Caleb. That's so annoying. It's because I took so Oh, long. we're supposed to this way, isn't it? Or this No, way? this way's fine. This way, but I took ages because I was trying to look cute. yeah. पर मेकअप तो इसने कुछ नहीं किया. मैंने तो No. खैर I've put a little bit of मुंह धो लिया. lip balm. और बस हम ऐसी खानदानी The thing is, I'm just for the time being, I'm done with. I haven't been wearing makeup for like I haven't even worn makeup. Just don't wear makeup, do I? पता नहीं मेकअप अच्छा भी लगता है कभी कभी बहुत annoying सा लगता Yeah, if है. you do it all the time, then Yeah. it's, what is up to you? If you want to do it all the time, do it all the time. Whatever मुझे- whatever makes you feel good about मुझे yourself. मेकअप अच्छा लगता है अगर मैं पार्टी पे जाऊँ, अगर कोई वेडिंग हो या कुछ हो. ऐसे I'm not really makeup person. Yes, Yeah. you are a natural beauty Natural. because you are so खूबसूरत. Yes. Oh my goodness, Mama has got me hooked and Sumaya on this drama. हमसे काट के जाते, No. हम साथ हैं No. मुझे नाम बुला दिया. हम कहाँ के सच्चे थे. It's such a good drama. हम Wow, कहाँ यार. के सच्चे. थे. What did they say? तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन. तेरे बिन. What's that? Osus? It's a tattoos. टाटू प्लेस. ये अल्लाह, पता नहीं लोग टाटू क्यों बनाते हैं, क्योंकि इतना प्यारा बदन होता है उसको अगली बना देते हैं. खैर, And why is his short so इनकी tiny? अपनी मर्जी. Worrying about why they give themselves so much pain, and that's not even look nice, man. Tattoo. Yeah. Can I tell if tattoo was halal? The I know. reason why I would get it because I love henna. I love henna so Mandy so much. So that's why I'm saying that if it was halal, then I'd have my whole hands done. Do you like the Rihanna one? Oh yeah, I really don't like tattoo. I even don't like henna. I like love henna. applying henna. I could for put others. it from the top of me to my toes. When I love was it young, so much. when I was like teenage, I used to love henna, and then I don't know why. I really don't like henna. If I put it on, after 10 minutes, I want. I just fully picked my nose get rid on of on your video. It's because there's dust in my nose. Yeah, It's you so know, annoying. with this COVID, I need my anti-bag. nose Give me is some very anti-bag. Do you know I'm one of those people that if I even touch my snot or something disgusting, I need to wash my hands yeah, straight and when away. she was a little girl, she put her boogie on me, and Did you just squirt
it all over me. Yeah, and I just run after her. I don't She was want about to speak. beat my goddamn ass. She was like, I'm gonna slice your ass open. And I was like, oh shit. I really hate Boogies. boogies. I hate it. What makes me sick? I would say, snot, like in my mouth. I vomit with it because it makes me so sick. और मुझे पता है सबसे ज्यादा जो दुनिया में बुरी लगती है चीज Poo. No, पू हर किसी को बुरा लगता है. Okay, what? कोई भी पू को टच नहीं करता. Sweat smell like BO, like Oh, किसी के yeah. बगल से या किसी Yeah. के माउथ से आ जाए, क्योंकि हम सब इंसान Yeah. हैं. हमारे BO makes बगल me से भी sick. आती है. Even doesn't BO matter makes how me clean you are, लेकिन अगर आप श्योर या कोई डिओड्रेंट नहीं लगाएंगे तो जरूर आपकी BO आएगी. और Well, it's this cream that I've been using. You know, I never stink. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I just don't like. But when I was hate fat, stink. and I used to, like, I'm still fat, but when I Oh, was no, huge, you're not. when I was huge, Hmm. I used to walk a little bit, and then I feel like I used to say, Mama uses the whole bottle of Shore over herself. Like yeah, she's obsessed with it. Powder, मैं baby talcum powder बहुत use करती थी, कि मुझे क्योंकि I don't know, I think that was my mum habit. My mum used to hate. I could never use spray because spray it blackens the Yeah. area. And there's so many chemicals in it. So what I use She is used just a a roller. roll-on or like a natural. But I only like Shore or Dove. Calabricella, Mama, Italian Shall we food. go See? there? Yeah, we can go over there. Yeah, that's we fine. can go there. So where we can park there. Yeah, okay. You can't go that way though. Yeah, that look good. Mama, you there's no left turn, okay? There is. No, Jan, look up, Jan. Oh, okay. So don't try to be illegal, please. Here. Don't be illegal. You're very illegal. Yeah, Have you ever I already tried- booked in London. Sen barbecue is really nice as well, by the way. Yes, if Sen you feel like barbecue is Lebanese, very nice. if you This feel like- that was in Rizwan Newport. always goes there. Yeah, I like Sen barbecue. Me and Naseem aunty used to go Newport. So Yeah. let's see. Rizwan loves Sen. If I smell it, then I can tell which one. But I don't smell it. Then what's the point of eating? You should just be on a diet. But the thing is, right, mentally I'm like, no, I know that my mind is telling me that it tastes amazing, even if I don't know what it smells or tastes like. Someone just I don't need diet, because someone just text me on my TikTok video. They say in Pashto zara khazaye sa video gana che or something like that. Zara khazamin purani औरत हो तो You're an old woman, what's the point of you putting videos up? पुरानी That's what they औरत said. हो ओ बुढ़ी औरत हो, पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि 50 साल में औरत की जिंदगी फिनिश हो जाती है. Life begins at 50 go, Mama. Yeah, so I don't know. हमारे पठानों को पता नहीं कब Mama, बातें F करने them. के Okay. बात करने का तरीका आएगा और कोई नहीं करेगा. ये जो हमारे पठान लोग हैं ना, उनके मुंह में शैतान ने पता नहीं क्या किया है. Calabricella. The name is really hard. Calabricella. Yeah, Calabricella. So it's Italian restaurant, isn't it? Yeah. It's Italian restaurant. और हमने यहाँ पे सिर्फ चिकन हलाल होता है, पर हमने अभी ऑर्डर कर दिया है वेजिटेरियन पास्ता और वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, तो वो खाएंगे इंशाल्लाह. तो ये आ गया है वेजिटेरियन पास्ता. Cheese or chicken? Yes, please. What's the Maliha? Calzone. What? Yeah, okay, fine. Thank you very much. That's all. Thank you. Thank you. आज मैंने मलिहा को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगाऊंगी क्योंकि कल भी सारी चीज़ें रह गई थी. So, Ma, what do you think of the food? I like it. I like pasta. Pasta is always my favorite. Yeah, pasta is my favorite dish, for those who don't know. I'm The happy. calzone it's nice. It's full of veg. But I was telling Maliha that I should make this. Yeah, you definitely should make calzone. Yeah. तो खाना खा लिया और अब कैलब को उठाने आए हैं. कैलब को उठा लेंगे तो उसको मलिहा को और कैलब को ड्रॉप कर दूंगी. मैंने मलिहा को कह दिया मेरे साथ आ जाओ. वहाँ पे सुबह मैंने एक वीडियो बनाया. ये टिकटॉक का कोई न्यू ट्रेंड निकला हुआ है, उसमें वो कहता है
वो जो सांप था कि क्या कोई ऐसा गाना है उसमें सब कहते हैं वो जो सांप था वो मिल गया समथिंग समथिंग किसी के पर how was it? I don't know, but Let me- Mama's doing this in it. सबर करो मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा वो ये एक बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आजकल जो रिश्तेदार होते हैं ना तो वो सांप की तरह ही होते मिला हुआ तो ये मैंने ये सुना तो मैंने कहा ये आजकल के ज़माने में ये गाना कितना फिट आता है स्पेशली उन लोगों पे जो कि अपने फैमिली को बहुत प्यार करते हैं और फिर उनको पता चलता है कि उनका फैमिली का वो प्यारा बंदा Hi, वो is that चला Rian? गया Hi, Rian. उसके it's दुश्मनों के Malia. साथ I मिलकर। had खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे the कोई दुश्मन तो नहीं है session once, then I पर got कुछ COVID. लोग हैं जो I'm not कि sure if you can. Hi, my love. मेरे नहीं पर हमारी oh my, फैमिली you के won't लिए believe बहुत बुरा it. सोचते It हैं completely finished और me. It wiped तुम्हारा me. लव I was वन hospitalized as तुम्हारा well. जिगर My का kid टुकड़ा was so ऐसा ill जाके with उनसे it. मिल My जाए husband, my mother, उनकी my बातों की niece वजह who's से 1 तुम्हें month बुरा भला old. She कहे picked it up as well. तो My ये गाना बड़ा sister, फिट my आता है 2 other. और ये मेरा किटोली आ गया मेरा किटोली मेरा केलब कम ऑन गिव मी किस ये मेरा कटोली आ गया ये मेरा कटोली यू वांना गो टू मी यू वांना गो विद मी Where? सुमो हाउस Where's Mama going? You and Mama both Remember, gonna. I'm going to go to the clinic tomorrow. Oh, okay. You wanna go or no? Is Mama going? If Mama don't go, then you don't wanna go. Come. Hey, love. Maybe is Mama going? Hey, you are Mama Chamcha, isn't it? Kitoli, say hi to everyone. No, say proper. Assalamu alaikum. Hi everyone. He's not in a good mood. Okay, I'm gonna drop Maliha on Caleb here home and Love you. and bye Maliha, bye Kitto, bye to Bye, Shama. bye. You should stay forever with me. Inshallah. So tomorrow Maliha's coming I have a for her hyperbaric session and I'm Yeah. going to go see Mama. nearby my house. So inshallah, see you. I love you, Mama. Okay. So see you at my house. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Fi aman Allah. Okay, Mali bye. So दूसरा दिन है आज अभी बस मैं थोड़ी देर हो गई उठी हूँ वज़ू वग़ैरह किया कपड़े बदले और क्योंकि आज समी ने मुझे कहा है कि कार्डिफ आना और मैं आपको और मलिहा को और उसकी बीवी बच्चों को खाने पे लेके जाऊँगा तो मैंने कहा चलो क्योंकि जो वज़न कोविड भाई ने कम करवाया था सो आई थिंक आई एम गोना गेन ऑल द वेट बैक बिकॉज every day one of my child taking me out again. I know all of you say don't go too much out and don't eat outside, but I think it's a joy of life कि आपके बच्चे that your children give you time. I don't want to miss that. I really don't want to miss that. So honestly even I don't like outside food that much, but each of every minute I spend with my children I really appreciate that and अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे टाइम देते हैं सो आज फिर जा रहे हैं और वैसे भी मेरा दिल घर में नहीं लग रहा आजकल जब से मुझे कोविड हुआ है सो अभी मैं उठी हूँ मलिहा आई क्योंकि मलिहा का मेरे घर के पास मुझे नाम नहीं आता एक ऑक्सीजन थेरेपी है उसकी वो हो रही है तो मलिया ने मुझे कहा कि मेरा ख्याल था कि मलिया आएगी हम नाश्ता करेंगे फिर मैं मलिया के साथ जाऊंगी वहाँ पे वो उसके साथ 1 घंटा गुजार के तो फिर हम ब्रिजेंट आउटलेट जाएंगे 1-2 चीज़ें ख़रीदनी है और देन वी कैन गो एंड मीट समी लेकिन प्लान चेंज हो गया क्योंकि अगेन आई हैड अ रियली डिस्टर्ब नाइट
बार बार मैं उठती थी और बार बार जाग आ जाती थी। सो रात को फिर मैं सुबह नमाज के बाद जब सो गई, सो आई वेक अप अबाउट 9 o'clock। सो दिन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है जब आप लोग लेट उठते हो। तो अभी मैंने ये वाला व्लॉग भी एडिट करके डालना है और एक छोटी सी रेसिपी टिकटॉक के लिए भी बनानी है। ये भी एक जॉब हो गया है। अब थोड़े से मैंने कपड़े सॉर्ट आउट करने हैं क्योंकि वो मैंने अफ़गान रिफ्यूजी को जाके देने हैं इंशाल्लाह। यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है कार्डिफ से, वहाँ पे कौंसल की रिफ्यूजी हाउस में वो है, तो उनको इंशाल्लाह वो देने हैं, तो वो सॉर्ट आउट करने। और मेरे पास सिर्फ है 1 घंटा और 15 मिनट। सो मैं जल्दी जल्दी से इसमें ये सारा कुछ करूँगी और फिर इंशाल्लाह आपको दूसरे व्लॉग में बताऊंगी कि हम समी के साथ मिले और मलिहा के साथ ब्रिज एंड आउटलेट में क्या ख़रीदा और कुछ और चीज़ें। तो चले पहले तो मैं चलती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कल मैंने क्या किया। तो जो कल मैं आई, मलिहा को घर छोड़ दिया और मैं घर आई, तो मेरे दिमाग में आया कि 2 रग बहुत गंदे हैं और मैंने उनकी सफाई की है। तो चले पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उनकी सफाई कैसे की है। मैं आपको अपनी बिल्लियाँ भी दिखा दूँ। ये मेरी बिल्लियाँ हैं। ये मेरी इस बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, डर जाते हैं कैमरा देख के। आपको अपने रग दिखा दूँ। जब बच्चे नहीं होते तो यहाँ ये पार्क बिल्कुल कार पार्क हमारा बिल्कुल एम्प्टी होता है, दिल को होल उठते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रग, ये कल मैंने यहाँ पे डाल दिए। मिस्टर खान लॉन मूवर लॉन कर रहा है। हमारा जो गार्डनर है वो भी बीमार है बेचारा। तो ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर दिया है। ये इतना गंदा हुआ था और आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे साफ़ किया है। ये भी मैंने साफ़ कर दिया और ये इतना बड़ा रग है। इससे मैं इतनी खुश नहीं हूँ, लेकिन इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से फिर भी 70% साफ़ कर लिया है। तो ये मैंने आपको अपना रग दिखाया। अब अंदर जाते हैं घर में। और ये खान ने नाफिया की मेडिकल के बुक सारे निकाले हैं बेसमेंट से। कुछ मेरे आर्ट के बुक भी हैं, तो मैं उसको अभी कह रही हूँ कि ये ना किसी चैरिटी में दे दें। ये एक बात भी हमारी हर वक्त आर्ग्यूमेंट होती है कि खान बाहर बार बार जाते आते हैं गार्डन साफ़ करने के लिए, और मैं इस घर में वैक्यूम लगा लगा के थक जाती हूँ। मैंने कल शाम को सारा वैक्यूम लगाया था और मैंने सोचा था कि आज कोई काम नहीं करूँगी, लेकिन आज फिर वो, क्योंकि वाइट मार्बल है और अब फिर मुझे सारा घर नज़र आ रहा है, तो अभी फिर मैं वैक्यूम भी लगाऊंगी। तो एक काम और ज़्यादा हो गया। चले मैं पहले अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। मैंने कल रात बहुत ही प्यारी चिकन बिरयानी बना ली थी, पर खाई नहीं जाती क्योंकि 2 बंदे हम होते हैं, तो इतना खाया नहीं जाता। और अब मैं अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ। मलिहा तो चली गई है, प्लान तो था कि उसके साथ नाश्ता करूँगी, पर अब अपने लिए मैं जल्दी से ग्रीन टी और थोड़ा सा मेरे ख्याल में अंडा बना लेती हूँ और ब्रेड के साथ खा लूँगी, क्योंकि मेडिसिन खाने होते हैं तो नाश्ता बहुत ज़रूरी है। So as I say in Urdu, I'm going to translate in English as well for my lovely English followers, for my lovely English speaking followers. So as I said that I'm going to make my breakfast now. I'm making, I don't know, maybe I make fried egg, but I feel like making omelette. This is my garden, tomatoes, but I really don't know what I'm going to make. But yeah, definitely green tea, because that's what I drink in the morning. And it's amazing होती है। मुझे लगता है कि मेरे चेस्ट को भी साफ़ करती है, और मैं हमेशा से ग्रीन टी ज़्यादा पीती हूँ मॉर्निंग में, फिर बाद में कॉफ़ी भी पी लेती हूँ।
तो चलिए मैं बनाती हूँ अपने लिए नाश्ता। तो सोखा काम कर लूँगी for 2 bread in my toaster. And now my kettle, boil some water in my kettle. My mom told me that सुबह को हमेशा केटल में फ्रेश पानी डाला करो, रात का पानी केटल में चाय के लिए इस्तेमाल ना करो। I don't know is why she said that, but please leave the comment if you do the same. ये मेरा छोटा सा फ्राई पैन और ये मेरे 2 अंडे मैंने नहीं दिए, अकबर भी कहते हैं। ये मैं अभी अपने लिए फ्राई कर लूँगी। इतना दिल का जोर नहीं है कि अपने लिए इतनी मेहनत करूँ और बनाऊँ ऑमलेट, तो बस फ्राई है ये चीज़ है। वैसे भी मुझे इतनी भूख नहीं है, लेकिन नाफिया ने कहा है कि आजकल तुम 2 अंडे ज़रूर खाओगी, यानी कि वीक में उसने कहा है 4 अंडे ज़रूर खाओगी। तो 2 मैंने मंडे खाए थे और 2 मैं आज खा रही हूँ, तो हिसाब पूरा हो गया। अच्छा आप लोग, मैं आजकल पाकिस्तानी ड्रामे तो वैसे भी मुझे पसंद बहुत है, पर आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही देख रही हूँ। जब भी मैं घर में होती हूँ स्पेशली, तो मैं पाकिस्तानी ड्रामे बहुत देख रही हूँ, इससे मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है। तो आप लोग मुझे ज़रा प्लीज़ बताना कि कौन कौन से ड्रामे अच्छे हैं। आजकल मैं वैसे एक जो हम टीवी के ड्रामे वो देख रही हूँ, लेकिन कल मैंने भी टिकटॉक पे एक ड्रामा की एडवर्टाइजमेंट देखी, कुर्बान। तो आप लोग मुझे बताना कि ये देखने के काबिल है कि नहीं है, तो शायद मैं वो ड्रामा देख लूँ। अच्छा हमारे घर में क्या होता है, चाहे मैं कितने भी नॉन स्टिक के पान ले लूँ, खान जो हमारे घर में बड़ा है सबसे, उसको कह के मैं मर गई हूँ अल्लाह ना करे, लेकिन वो ज़रूर उसको सख्त वाला वायर लगा देता है और थोड़ा बहुत आई डोंट नो कि वो भूल जाता है। मैं तो परसों से कह रही थी, मुझे लगता है आप कष्ट से ऐसे करते हो, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल में मेरे पास कबर्ड में कोई 15 से 16 से ये 20 ज़्यादा पैन हैं, सारे नॉन स्टिक, बस सब फिर भी वो ख़राब किए हुए हैं, थोड़े बहुत ख़राब किए हुए हैं, लेकिन किए हुए हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो रही है। क्या आपके घर में भी कोई ऐसे कहता है? मैं कहती हूँ कि काश मेरी किचन में ये मर्द लोग ना आए, स्पेशली खान। तो ब्रेड भी हो गए हैं और अब बनाती हूँ अपने लिए ग्रीन टी। मुझे जब से कोविड हुआ है तो नहार मुँह मेरी अम्मी ने मुझे ये कहा था, जब मैं पहले काफ़ी बीमार थी, मेरी अम्मी ने कहा था कि ब्लैक सीड और ये हनी, तो सिद्रा हनी भी है, मनुका हनी भी है, तो मुझे तो यही मिली लोकल यहाँ के शॉप से। नहीं, ये लोकल शॉप से नहीं मिली, सॉरी, ये मलिहा ने अमेज़ोन से मेरे लिए मंगवाई है। तो मैं नहार मुँह इसका आधा चमचा भी लेती हूँ। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल एज फार एज माई मम टोल्ड मी, एंड I read a lot about it that when you wake up in the morning have black seed and honey together, so try ज़रूर करना, क्योंकि मुझे लगता है इससे मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है। मुझे कब्ज़ रहती थी और वो काफ़ी इससे अच्छी हो जाती है। मैं बीच में स्किप कर लेती हूँ, पर जब भी मैं बीमार होती हूँ मैं ज़रूर खाती हूँ, तो मैं ये आधा चमचा भी खाती हूँ। चम्मच में अपना ये पेशावर वाली, मैं हमेशा पेशावर वाली खुली ग्रीन टी पीती हूँ, इस अमेजिंग है। और इस चाय वाले का नाम है रऊफ़। ये मेरे अब्बू लोगों के ज़माने का है। मेरे अब्बू खुद ग्रीन टी और ब्लैक टी का कारोबार करते थे, सप्लाई करते थे सारी शॉपों को, लेकिन थोक से कीनिया से आती थी मेरे अब्बू की चाय और फिर वो बाकी शॉपों में सप्लाई करते थे। लेकिन मेरे अब्बू खुद भी जो चाय लाते थे द बेस्ट लाते थे, और रऊफ़ एंड सन्स की चाय मेरे अब्बू को बहुत पसंद होती थी। और मैं अब भी जब जाती हूँ तो रऊफ़ से, कि सहानी बाज़ार के पास है मेरे ख्याल में, या चौक यादगार के पास है, मैं उनसे चाय लेती हूँ। अच्छा कमाल की बात यह है, कॉफ़ी मुझे मीठी अच्छी नहीं लगती और ग्रीन टी मुझे मीठी अच्छी लगती है, तो मैं 1 स्पून चीनी ज़रूर डालती हूँ। आप भी कहेंगे कि मम्मा क्या ब्लॉग बना रही है, क्या ऊट पटांग हमसे बातें कर रही है, हमें क्या ज़रूरत है मम्मा की चाय के बारे में जानने का। पर पता नहीं क्यों मैं आप लोगों से हर बात शेयर करती हूँ। मुझे परसों किसी ने कमेंट किया था कि क्या फजूल औरत हो, अपनी घर की बातें शेयर करती हो।
तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि YouTube और Instagram वाले हमारी फैमिली हैं, और दूसरी तरफ फिर हम ये भी कहते हैं कि हम उनसे हर चीज़ छुपा लुका के रखें। आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। हाँ, कुछ बातें होती हैं जो बहुत ही पर्सनल होती हैं, उनको छुपाया जा सकता है, लेकिन आम घर की बातें, मैं क्या करती हूँ, मेरे बच्चे क्या करते हैं, क्या हुआ है मेरे साथ ज़िंदगी में, थोड़ा बहुत बताने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, एक और बात भी आपसे थोड़ा सा मशवरा लेना है कि मैं अभी तक बहुत स्वेट होती हूँ कोविड के बाद। मुझे अभी मैं थोड़ी सी खड़ी हो गई हूँ, बस 10 मिनट अगर मैं खड़ी हो जाती हूँ, काम करती हूँ, तो मुझे पसीना आ जाता है। आप लोग ये देख रहे हैं मेरा मुंह भरा हुआ है पसीने से। मुझे वैसे भी किचन में काम करते हुए स्कार्फ पहनते हुए पसीना बहुत आता है, लेकिन ये तो कुछ और तरीके का है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई रेमेडी पता हो या कुछ पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैं इस पसीने के लिए क्या करूँ। वैसे बाय द वे मेरा स्मेल अभी तक नहीं आया, तो अल्लाह खैर करे, ऐसे ना फॉर लाइफ चला जाए, क्योंकि आपको याद होगा नाफिया ने बद्दुआ दी थी कि अल्लाह करे तुम्हारी स्मेल चली जाए, तो वो शायद वो बद्दुआ कबूल हो गई है। और मैं थोड़ी सी नोटी आजकल हुई हूँ, तो हेल्थी भी कर रही हूँ, मैं हेल्थी डाइट भी कर रही हूँ, लेकिन मैं ब्रेड पे ये ज़रूर लगाती हूँ। पर ये कहते हैं कि बहुत ही लाइट है, सिद्दीक मेरे लिए हमेशा लेके आता है, तो मैं ये लगाती हूँ। वो जब भी मेरे लिए ग्रोसरी करता है तो ये ले आता है। जब मैं कभी बीमार होती हूँ तो बेचारे मेरे बच्चे फिर इधर उधर दौड़ते हैं, सारा वो वही करते हैं। तो ये सिद्दीक को मैं कहती हूँ मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, पर सिद्दीक कहते हैं नहीं, आप अब 50 के हो गए हो, अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ऑल बटर एंड ये और वो। तो मैं फिर थोड़ा सा डर भी जाती हूँ कि बस अब बुढ़े हो गए हैं, तो अब हेल्थ का ख्याल करना चाहिए। वो मेरी अम्मी कहती थी कि इंसान जितना बुढ़ापे की तरफ जाता है उतना ज़िंदगी से मोहब्बत हो जाती है। हालांकि मैंने कभी पहले ये नहीं सोचा था कि अल्लाह मुझे इतनी लंबी ज़िंदगी दे। मैं कहती थी बस जो है अल्लाह की तरफ से। पर अब ग्रैंड चिल्ड्रन इन सबको देख के अब लालच आती है कि इनकी खुशियाँ देखूं, इनके साथ टाइम गुजारूं, इनसे जल्दी ना जाऊं। तो अल्लाह ताला ने तो हर इंसान का एक दिन मुकर्रर किया हुआ है। we have to go. So as I say that we have to go one day from this world. But the more you get older, the more you involve in your children and your grandchildren and your family, you want to live long. ये आइए मेरे साथ और हम अपनी बिल्लियों के साथ बैठ के नाश्ता करती हूँ। एज यूजुअल मैं हमेशा अपनी बिल्लियों के करीब बैठ के नाश्ता करती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। सो अभी मैं बैठ गई हूँ और अब मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। बिल्लियाँ मेरी दूसरी सेटी पे बैठी हुई हैं और मौसम काफ़ी अच्छा है, प्यारी सी धूप निकली हुई है। मलिहा का इंतज़ार कर रही हूँ, मलिहा आ जाए तो फिर इंशाल्लाह जाएंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। पर उससे पहले ये व्लॉग मैं एडिट कर लूँगी और शाम के लिए रेडी कर दूँगी कि शाम को पोस्ट कर दूँ। अच्छा, मुझे नाश्ता करते करते एक बात याद आ गई। मैंने कहा मैं हमेशा आप लोगों के साथ हर बार डिस्कस करती हूँ, पर मुझे एक बात याद आ गई। मैं सुबह नमाज के बाद मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ के, तो तस्बीह पढ़ के फिर मैं अपना फ़ोन चेक कर लेती हूँ कि किसी का मैसेज आया हो या कुछ आया हो। तो अक्सर कुछ ही टिकटॉक का कोई मैसेज होता है या कुछ, वो भी चेक कर लेती हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे ये 2-3 दिनों से मैं देख रही हूँ कि एक दो लोग हैं जो बैठ के दूसरे टिकटॉकर के ऊपर, इनके अकाउंट इतने बड़े नहीं हैं और जिनके अकाउंट बहुत बड़े हैं उनके पीछे बैठ के बातें करते हैं। जैसे कि एक मियाँ बीवी हैं, वो मेरे ख्याल में अमेरिका के हैं। I'm going to repeat this in English as well, okay? So let me finish in Urdu first. So मियाँ बीवी हैं, वो अमेरिका के हैं, पाकिस्तान आजकल आए हुए हैं। मियाँ जो है, husband got a beard and he's I think little bit like late 50 and the wife is about 40, maybe that much, I don't know, well I'm not sure. And
वो कुछ भी नहीं करते, वो बस ऐसे वॉक करते हैं दोनों मियाँ बीवी, कहीं बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, वॉक करते हैं, या फिर बीवी शॉपिंग करती है, या फिर खावंद उसको चाय पिलाता है, या यानी कि उनकी वीडियो में देख के ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि वो कोई बेहयाई वाला काम कर रहे हैं। मुझे अब उनका नाम भूल गया कि उनके टिकटॉक की क्या आईडी है, पर मियाँ की बड़ा वेल ड्रेस मियाँ होता है और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, उसको मौलवी मौलवी कह के छेड़ते रहते हैं लोग। और उसके पीछे 2-3 जो ऐसे छोटे अकाउंट वाले लोग हैं वो बैठ के उनको वो गालियां दे रहे होते हैं कि मौलवी तुम्हारा ये हो तो तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम अपनी बीवी को दिखा रहे हो तो तुम ये है, मौलवी तेरा मुंह ऐसा हो, पता नहीं उसको इतनी गंदी गालियां देते हैं। तो मैंने लिटरली उनके पेज पे गई, मैंने देखा कि मैं देखूं कि ये क्या गंद करते हैं कि लोग को इतना गुस्सा है। लिटरली मुझे एक वीडियो नहीं मिला जो कि ऐसा हो कि जिसको तुम बेहया कह सको या कुछ, बस सिर्फ ये है कि उसकी बीवी उसके साथ फिर रही है, बीवी ने अच्छे भले सूटेबल कपड़े पहने हुए हैं, पर हाँ स्कार्फ थोड़ा सा कभी लेती है कभी नहीं लेती है, बाकी मियाँ बीवी बस सिर्फ फिर रहे होते हैं, ना कोई साउंड उसमें होता है, ना कोई डांस, ना कोई गाना, ना कुछ और, बस उन दोनों की मोहब्बत है। मैं हैरान हो गई कि ये आदमी जो इनके पीछे लगा है, आदमी नहीं बल्कि 2-3 आदमी जो इनके पीछे लगे हैं और बातें कर रहे हैं, ये किस करवट अपनी कब्र में लेटेंगे, क्योंकि इस्लाम को टारगेट बनाते हो, इस्लाम करते हो, तो इस्लाम में तो सबसे पहले ये है कि किसी के ऊपर गीबत ना की जाए, किसी के ऊपर बहतान लगाया ना जाए, किसी की बेइज्जती ना की जाए। तो क्या ये भूल गए? ठीक है, मैं मानती हूँ एक बात कि वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है और वो अपनी बीवी, खूबसूरत बीवी को लेके फिरता है, चलो गुनाह है, चलो ये गलत है, लेकिन ये भी तो गलत है ना कि बैठ के उसके पीछे इतनी बातें, इतनी गंदी बातें उसकी बीवी के पीछे, और क्या, और मौलवी। सो अनदर थिंग, दाढ़ी रखने से कोई मौलवी नहीं हो जाता, दाढ़ी तो फर्ज है, दाढ़ी तो हमारे मज़हब का हिस्सा है जहाँ तक मुझे पता है। अब हर पठान की दाढ़ी होती है, तो क्या वो हर पठान मौलवी है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आई डोंट नो कि मेरा ये व्लॉग उन लोगों में से भी कोई देख ले जो बैठ के इन बेचारों के पीछे बातें करते हैं। अगर बातें करते हो तो खुदारा प्लीज़ लोगों के पीछे बातें करना बंद कर दो। सो एज आई से इन उर्दू, I was watching the TikTok video this morning from couple of days, and there's 2-3 small account people. They always talk about the big account people, which they're not even doing anything wrong. They just like husband and wife from America. They just visit Pakistan and they're just walking places, having tea, coffee, and husband and wife love each other. And the husband got a big beard and like modest clothing he wearing, and the wife is really beautiful as well. And these 2-3 guys, they just swearing and abuse them, and oh my god. So I literally go to their page to watch that what they're doing, that why people are so angry. There was nothing. It was just like husband and wife. That's it. So I say, if they think that he got a beard and he's a TikToker, so, and that's haram, so that's equally haram that they just sit down and talk about these husband and wife. I think this is really really wrong. So what do you think? Please comment below. So ये एक बात थी, और एक और भी मेरे ख्याल में 1-2 औरतें हैं, उनका भी नाम नहीं आता ना। एक थोड़ी सी मेरी तरह हेल्थी है, मोटी है, और एक पतली सी है, और उसके दांत भी मेरे ख्याल में नहीं है इतने। बहुत मेरे ख्याल में पंजाबी हैं, और वो दोनों सिस्टर वो थोड़ा सा डांस वांस करती हैं, लेकिन काफ़ी एज की लगती हैं, हो सकता है मुझसे भी बड़ी हों। मेरे अल्लाह, उनके पीछे जो बातें करती हैं, तो मेरे ख्याल में अगर डांस करते हुए उनको कोई गुनाह मिलता है
तो इन लोगों की बातें और गालियों और अब्यूज़ करने की वजह से उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ शेयर करना कि ये मैं सिर्फ ऐसा सोचती हूँ या आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि हमें ठीक है, गुनाह को हमें स्टॉप करना चाहिए, गुनाह को हमें एलानिया बुरा कहना चाहिए, लेकिन गुनाह को कहना चाहिए, इंसान को नहीं। और उन इंसान के दांतों के ऊपर हंसना, उनकी फिगर के ऊपर हंसना मुझे तो बहुत बुरा लगा है। तो चले ठीक है, मैं अपनी चाय ख़त्म कर रही हूँ। मलिहा के आने में थोड़ी देर है और मैं इंशाल्लाह ये व्लॉग भी इसी वक्त ख़त्म कर दूँगी और इंशाल्लाह इसको एडिट करके शाम को डाल दूँगी। तो प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसमें कोई शेयर करने के काबिल आपको चीज़ लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स। एंड आई लव यू ऑल। आप लोगों को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरी दुआओं में आप हो, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।